other sources. Taxable income from other sources. And today I do expect your friends and colleagues should assist me for the same. How any income to be classified as an income from other sources. Any of you, please, who have attended previous lecture, can get me the answer. How any income to be classified as income from other sources? Quickly. जो सर किसी भी नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है. Yes. Any income which is not to be classified either as salary or house property or business or capital gain, by default it will be fall under 56 income from other sources, and which will be there under section 56 to 59. 56 of other sources income is charges section. It shows how the taxability to be imposed on income from other sources. Section 57 is a section which gives us the deduction, which all deductions is allowed. So to earn those income, whatever you have incurred as an expenses will be allowed as a deduction. 58 shows how those deductions will not be allowed. Suppose you have not paid TDS or any type of capital expenditure, or if it is a personal expenditure, then those incomes will not be, those expenses will not be allowed as a deduction. Am I right, Sachin? Yes sir. Sir, exemption under section 10 होगा ना? For this, you need to be very, very accurate about this exemptions of section 10. Even last week we did the questions whereby many other sources incomes is falling under exemptions. So we need to be very accurate. Otherwise, there will be a chances that we are going to make errors during exam. So along with the other sources, section 10 knowledge is very much required. Okay. Why I'm revising all these things? Because many of you have not attended previous lectures. Okay, and this all is given in your textbook. This is basis of charges, which is explained under section 56. Okay, all the incomes we have seen. There are many incomes which are falls under income from other sources. Okay, like say for example, this agriculture income, casual income, annuity, rent, subletting of the property, ground rent, vacant plot rent, salary of MP, MLA, family pension. Only you need to understand when the deduction of family pension related to family or their dependents comes, then the deductions is 1/3 or 15,000, whichever is less. Otherwise, whatever to earn you have incurred as expenses will be considered as your deduction. These all are many examples of income from other sources. Now, those who have attended, they are very much apt to this deductions allowable under section 57. So to earn those income, whatever you have incurred will be allowed as a deduction. Deduction not allowable under section 58. So if there is any personal expense or interest paid without TDS, likewise, and only for the family pension, it is very clearly stated that 1/3 or 15,000, whichever is less. 59 is deemed to be considered as income from other sources. These are the examples. Okay. Gift also you need to take if the gift is more than 50,000, then it will be taxable, otherwise it is exempted. Family pension 1/3 or 15,000, whichever is less. This one is the same. Okay. We did question number 1, if I'm not wrong, and question number 2. Yes, Sachin? Yes sir. These 2 questions we did. We will do few more questions and then we will directly go for last topic. And for that, again, I will request you to learn all the topics and then attend next lecture. So your assignment will be checked next week.
जिसने वो नहीं लिखा रहेगा उसको लास्ट टॉपिक समझेगा ही नहीं, बिकॉज लास्ट टॉपिक इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ ऑल, computation of gross total income. For that you need to know the salary, you need to know the house property, you need to know the business and profession, you need to know the capital gain, you need to know the other sources. ये करेंगे तो ही तो gross total आएगा. Agreed? Yes sir. Okay, and then deduction. इसके अंदर भी deduction है. Wednesday को check होगा ना? Yes. Wednesday Thursday 29-30 है ना, 30 को लास्ट लेक्चर है आपका. अच्छा. इसके अंदर भी डिडक्शन आता है, दैट इज अंडर सेक्शन 80C to 80U. एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं ये सब सारी सिखा दूंगा, बट आपके सिलेबस में यहीं तक है, इसके आगे भी मैं सिखाऊंगा. क्लियर है? So now let us do few more questions on other sources. They are like this. Mr. Monakshi, heart specialist, provide you the following information for the year ended 31st March 2021. Interest on fixed deposit with Mumbai Chemical Limited. क्या आएगा? Will be income as income from other sources. Other sources. Very good. Consultancy and visiting fees. Other sources. No. नहीं. He's a heart specialist. अटक गया ना कोई. It is professional income. हाँ, ये नहीं लेना. Okay. Paid bank charges for collection of interest. Allowable as a deduction under section 57. To earn this income, we have incurred this expenditure. The income will chargeable under section 56 and deduction will be allowed under section 58. Winning from lotteries. Come from other sources. Yes, Other sources. interest on PPF. Other sources. Interest from NSC. Other sources. Very good. First, so we will do and tomorrow evening your exam is also scheduled. You must have got message, huh? Yes sir. So just do this formatting and then we'll be doing question number 3. Huh? Start करो खुद से solve करना. Do it and get me your answer. Sir, Yes, beta. सर आई एम इन ट्रेन सो नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट होगा कल एग्जाम के टाइम. तो सर आप मैं अगर मैं आउट हो गई जूम मीटिंग से तो आप इन कर दोगे प्लीज. मैं तो हुई नहीं ना, आपको गूगल क्लासरूम से मिलेगा. सर आप अरे जूम पे आप रहोगे सर ना? नहीं सर जूम में भी हो ना. अच्छा, आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए ऐसे देखने के लिए? नहीं सर सर देखो वो क्वेश्चन पेपर ना असाइनमेंट एज अ शेड्यूल कर दिया गया है. तो एग्जैक्ट 5 o'clock वो आपको ओपन होगा, क्वेश्चंस दिखेंगे आपको. ठीक है, दोनों टॉपिक मतलब सर आप जो
तुम पे मैं रहोगे तो ना, मतलब रहूंगा ही, वो मैं तो रहूंगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए ना एक बार देखने के लिए, ताकि आप लिख के अपलोड कर पाओ। नहीं नहीं सर, वो क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आप अगर वो रिमूव होते हैं तो आप इन कर लेना, मतलब। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मतलब मैं देख लूंगा कि आप लाइक, चलो कोई टेंशन नहीं। क्या नाम है? 50 है, ठीक है। मैं भूल जाऊंगा तो सचिन याद दिलाना भाई। में मतलब ठीक है समझ सर। गया, समझ गया। By next week everything will be over. सर असाइनमेंट भी चेक करोगे, साथ में हो जाएगा? हो जाएगा। आज ही मैं सिखा दूंगा आगे क्या करना है। अब थोड़ी मुझे कुछ सिखाना है। आपको सैलरी कैसे कंप्यूट करना है आपको आ गया है, हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करना है आपको आ गया है, बिजनेस प्रोफेशन कैसे कंप्यूट करना है आपको आ गया है, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे आ गया है, अदर सोर्सेस कैसे करेंगे आप सीख ही रहे हो, आप बता ही रहे हो मुझे आपको। सिर्फ डिडक्शन बताना है। अगर ये किया है तो डिडक्शन हुआ कर देंगे, ग्रॉस टोटल हम आ गए। इतना आंसर आया, फटाफट बताओ भाई। सर एक मिनट हो। ओ भाई 30,000. एग्जैक्ट। लेट अस सी। Yes, sir. इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट बोल स्तुति। 12,250. सही जवाब। बैंक चार्जेस माइनस किया, 50. उसके बाद सचिन वी 12,000. विल आल्सो सिट फॉर द करेक्शंस, हां इफ विल फाइंड विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 7,500. सही है। सीपीएफ fully exempted under section 1011, the taxability is what? Nil. And NSC total करो। Yes, Suti, you are right. 30,000 is the right answer. बहुत simple है यार. This is very simple. You want me to take another question or we should start the next topic? Gross total income. चलो ये बगैर पढ़े आप लोग खुद से सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अक्षय। जल्दी आ, जास्ती टाइम मत ले। क्या बोल रहा है? मिस्टर अक्षय लिव्स इन अ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी गोकुल धाम, annual rent of which is 12,000 per annum. Okay, half of the property has been subletted. 12,000 मतलब 1,000 रुपया एक महीने का, ठीक है। half of the property subletted by him at a monthly rent of 750. Okay, तो हाफ का रेंट कितना होना चाहिए? 500। और वो कितने पे सबलेट करना है? लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट सबलेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि आई एम नॉट द ओनर। मैंने भाड़े पे लिया और मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। तो 750 into 12 will be income and 500 into 12 will be expenditure. तो जितना भी इनकम होगा रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट।
fully exempted under section 1015. Interest on PPF, fully exempted under section 1011. Interest on fixed deposit with Bank of Baroda, fully taxable. Interest on National Savings Certificate, fully taxable. Winning from crossword puzzle, fully taxable. And dividend from Indian company is income from other sources but deductible under section 1034. Yes or no? बट सर वो 10 लाख के अंडर है ना कौन सा? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज अगर ये 10 लाख से 6,000 ज्यादा रहता तो ये तो taxable. 6,000 है अगलू. This is only 6,000. कितना आंसर आया? Let us see. Income from subletting of property. $12,000. 12,000 कैसे आएगा? 750 into 12 ना? सर तो डिडक्शन होगा ना तो 9,000 आएगा ना. This is wrong. 750 into 12 कितना आता है? 9,000. 9,000. And deduction will be how much? 6,000. चलो कैसे यहाँ पे समझाता हूँ. उसने हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी लगाया कितने पे? 750 पर मंथ पे भाड़ा लगाया और 12 मंथ. सर 12,000 दिया है ना. 12,000 में से आधा लगाया ना बेटा, आधे में तो रह रहा है ना वो. अरे तो 750 into 12 करोगे तो 9,000 आएगा ना तो आपका डिडक्शन होगा मतलब भाड़ा एनुअल इनकम में से. क्या बोल रहा है? मिस्टर अक्षय इज रिसाइडिंग इन अ रेंटेड हाउस गोकुल धाम, खुद भाड़े पे रह रहा है
तो आधा अगर रह रहा है, आधा खर्चा तो उसका पर्सनल है, मुझे आधे से कोई लेना देना नहीं है। 12,000 पूरे साल का, तो एक महीने का कितना 1,000, तो आधे का भाड़ा कितना दे रहा है वो 500 रुपया। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी है सबलेटेड, ओके। जबकि हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी का उसको मिलना कितना चाहिए था, मिलना कितना चाहिए था 500 इंटू 12 मंथ, कितना मिलना चाहिए था 6,000। मतलब वो 3,000 एक्स्ट्रा जो है ना, दैट इज देयर इनकम। सर 500 कैसे है? पूरे का अगर 1,000 रुपया है, पूरा घर लिया मैंने, उसका 1,000 रुपया भाड़ा है, तो आधे घर का भाड़ा कितना 500 है ना। आधे घर का भाड़ा मुझे खर्चा कितना आ रहा है 500 रुपया, और मैं कमा कितना रहा हूँ 750 रुपया। तो जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ दैट इज माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, कितना है 2450. और वो फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1015 Yes, sir. है ना, इसमें लिखा हुआ है 1015 में आएगा ये सब पढ़ते रहो। हाँ? ठीक है, नेक्स्ट उसका इनकम विल बी नील। सीपीएफ अगेन 8775 एग्जम्प्टेड, लास्ट क्वेश्चन में भी था 1011 में। पीपीएफ इज देयर इन 1011, आरपीएफ इज देयर इन 1012। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल, एनएससी फुल्ली टैक्सेबल, क्रॉसवर्ड Fully taxable. डिविडेंड exempted. exempted 1034 Clear है? So income from other sources 35,000. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। सर अगर उधर 12,000 लेते हैं फिर 9,000 माइनस करेंगे तब पर भी 3,000 आ रहा है ना, तो तब पर भी राइट है कि नहीं? वो भी सही है, लेकिन लॉजिक ये कहता है इनकम फ्रॉम सबलेटेड हाफ सबलेटेड प्रॉपर्टी। अभी समझा? हाफ, हाँ। अगर सपोज मैं पूरा घर लिया हूँ, राइट, 900 स्क्वायर फीट का है, तो 450 में मैं रह रहा हूँ, 450 मैंने दे दिया भाड़े पे। दुकान लिया हूँ, गाला है, 2,000 स्क्वायर फीट का है, 1,000 स्क्वायर फीट में मेरा काम चल रहा है, 1,000 स्क्वायर फीट मैंने भाड़े पे दे दिया। ठीक है, वो भाड़े से मेरे को फायदा होगा तो ही मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा। ठीक है, अगर सपोज ये भाड़ा मेरे को जो डिडक्शन है वो 10,000 रहता, तो यहाँ मैं -1,000 नहीं लिखता, तो नहीं लिखता। नेगेटिव इनकम, आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते मुझे पैसा दो। नेगेटिव इनकम बहुत कम जगह अलाउड है। एक, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की वजह से, दूसरा बिजनेस प्रोफेशन में नेट लॉस की वजह से, तीसरा कैपिटल गेन में लॉस की वजह से। अदरवाइज और कहीं आप नेगेटिव नहीं दिखा सकते इसका। क्लियर है? तो वंस दिस इज डन, ये सबको टोटल करोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और उसके बाद आपको डिडक्शंस आते हैं। दोज डिडक्शंस आर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 और चैप्टर 6। वो डिडक्शन किस में आता है? सेक्शन 80 में आता है और चैप्टर 6 में आता है। वो क्या क्या डिडक्शन है? Those deductions are in our syllabus. We have very restricted deductions. We have 80C, 80CCC,
ATD, ATDD, ATL, ATE and ATU. Rest all is not there in our syllabus. तो उतना ही अपने को डिडक्शन सीखना है. ये मैं आज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ के आए. ठीक है? So then it will be easy for me. These are the deductions. ATC में क्या बोलता है कि अगर आपने गवर्नमेंट में किसी जगह इन्वेस्ट किया, चाहे आपने LIC में किया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए. ठीक है? डेफर्ड एन्युटी के लिए प्रीमियम भरा, ऐसे 30 आइटम्स है. ये सब याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया, अभी जैसे NSC में वहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, बट बाद में उसको ATC का डिडक्शन मिलेगा. अदर सोर्सेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ATC में डिडक्शन मिलेगा. ठीक है? यूलिप में अगर आपने पे किया, जीवन धारा में अगर आपने पे किया, नोटिफाइड पेंशन, अभी पता है आपको सबको पेंशन नहीं मिलता है, बट अगर आपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, ट्यूशन फीस पे किया बच्चों का, ये सारा का सारा डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा? अगर आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, दिस ऑल डिडक्शन यू विल गेट अंडर सेक्शन ATC. ठीक है? ATC में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, बट देयर इज अ कैप. कितना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं. ये याद रखना. ATC नॉट मोर देन, एंड ATC, ATCCC सब मिला के 1,50,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा. ठीक है? ATD इज डिडक्शन अंडर मेडिकल प्रीमियम. हम लोग मेडिक्लेम लेते हैं, उसका डिडक्शन मिलता है हमें. ओके? इफ दिस इज फॉर एंटायर फैमिली. एंटायर फैमिली मतलब the dependent parents, dependent children, up to 50,000 if there is a senior citizen. Okay? If there is no senior citizen, 25,000. Sorry, up to 50,000 for all, and extra premium for 25,000 if there is a senior citizen at your family. Okay? ATDD. Suppose if there is any handicap in my family, okay, for them also there is a deduction. So that handicap का जो severity है, they have covered into two ways. One is major, another is minor. Okay, minor and handicap if the severity is less than 80%, and major is more than 80%. Who can decide? The government, hospital, doctors can decide. उसका certification लेना पड़ता है, and then any individual who is keeping them, a differently able person or those handicapped at their family, they can claim ad hoc amount of deduction under section ATDD. Okay? So if the severity is more than 80%, then 1,25,000. If it is not severe, 75,000. Okay. Any interest on loan for higher education, fully allowed as a deduction under section 80E. Any income earned by handicapped person, तो यहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए डिडक्शन है. और आपने देखा रहेगा बहुत सारे लायंस क्लब और रोटरी क्लब डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम दे देते हैं. तो बोलते हैं अगर उनको अर्न हो रहा है, देयर आल्सो द सेम अमाउंट दे विल गेट 75,000 if it is a minor, and if it is major then 1,25,000. And with that you can file the return. तो आपने क्या करना है, ये सारे डिडक्शंस मिलेंगे,
तो आपको ATC टू ATU, ATC में क्या है, गवर्नमेंट, राइट, PPF, RPF, NSC, LIC, ये सब में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, ट्यूशन फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ATCC पेंशन फंड, दोनों मिला के आपको डिडक्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1,50,000। ATD medical premium 50,000, 25,000 extra you will get if there is a senior citizen. ATDD for physically handicapped if they are there in my family. Okay, there the limit is if it is a minor disability then 75. If severe disability 1,25,000. ATE interest on higher education loan and ATU. ओके, ये सारा डिडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपको, टोटल टैक्सेबल इनकम, ये इनकम आएगा। इनके इनकम के बाद तुमको ये टैक्स लायबिलिटी ढूंढना है। टैक्स लायबिलिटी ढूंढने के लिए क्या करोगे, आपको ये जो स्लैब है, टैक्स स्लैब, वो देखना है कि इनकम बाबा कितना आया। ठीक है, तो लेट मी सी हियर, सपोज हियर द नेट टैक्सेबल इनकम आई एम गेटिंग एज 1,06,900। तो इसको टैक्सेबिलिटी कितना आएगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा इसको, बोलो, एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज इट इज 1 लेस देन 2,50,000। ठीक है, बट सपोज यही इनकम 5,06,000 हो गया तो 30%। नो, गलत जवाब। 2.5 लाख पे कुछ नहीं देना पड़ेगा, अप टू 2,50,000 नील। यस और नो? फिर रिमेनिंग 2,50,000 नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, एट द रेट ऑफ 5%। यस और नो? एट द रेट ऑफ 5%। 5%। कितना आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी करे, सॉरी यहाँ नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में करे हुए। ये सब क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो। अगर किसी का इनकम 6,10,000 है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, तो ये आएगा 12,500। 2.5 लाख का 5%, यस 12,500, और रिमेनिंग 6,900 का 6,900 का एट द रेट ऑफ 10 है या 20 है, 20%। 20% निकालो क्विकली। 1380। 1380, ये हो गया तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी। समझा? तो ये सारी चीजें पढ़ के प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर में आओ, एंड देन वी विल वाइंड अप द सिलेबस।
after checking your assignment. Till then, take care and all the best for your CET. If you have any doubt, feel free to contact. Thank you, sir. Bye.